So, very good morning to all of you and welcome you all. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, Maverick. Soumyasri, good morning. Santirata. Okay. So, hello to everyone. और कैसे हो सब लोग? Maverick, yes. I hope you all are fine. This call is now being recorded. This call is now being recorded. So, today we will discuss about some miscellaneous topics which is very much relevant from OPSC as well as UPSC perspective. So, first of all, I want to ask you some questions that if any doubts, anyone having any doubts? Okay. Is my voice is clearly audible to all of you and screen as well visible? Yes, sir. Maverick, had you asked something? Yes, presently I am not able to see the messages, so you can speak, Maverick. Oh, you are in bus. Oh my God. So all the best, Maverick, for your exam. I think your question was that about the source of Odisha part. Okay. From tomorrow onwards we will discuss about the Odisha. Yeah. So କାଲିଠୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଥିବ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ନାହିଁ। ସୋ 80 to 90% ଆମ ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ 100% ସିଓରିଟି ତ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବିକଜ୍ UPSC OPSCର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସୋ ସେଇଟା ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ବି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସୋ वी can't actually give the guaranteed that 100% the questions will come with our source, but हाँ ଏତିକି କହିପାରିବି 80 to 80% of the question you can deal. okay, so ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭଲି ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ହଲିଷ୍ଟିକଲି ତାକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୋ ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାହାର ସୋର୍ସ, ବାକି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ଯଦି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ବି या फिर ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ ତା ବାହାରେ ବି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କି ଆମେ वी कैन एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन। ओके, ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ଲିଖିପାରିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଦ ସୋର୍ସ। ସୋ ସୋର୍ସ ପାଇଁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। So today we will discuss about the famines as ଗତ ବର୍ଷ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରି ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫେମାଇନ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଥରେ ଦୁଇଥର। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁମାନେ କହିବେ କି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସର? 63 days।
सो अकॉर्डिंगली पढ़ନ୍ତୁ समस्ते। तो 50 to 60 डेज नहीं कि चलतु आ मु तो कहूँ 50 डेज नहीं कि चलतु भलसे रिवाइज करूँ जहाँ एक्सटेंशन मिले रिविजन रे यूज करेंगे। So now come to introduction. So here we can write the background of famines. First you can write that since 1837 through 1901, this time period, a series of famines and a series of disaster or plague, this kind of things हमको देखिए पे मिले एंड सेतबेले कंसीडर करा जाउथला कि फेमाइन्स एंड प्लेग आर द ट्विन एनिमीज जे कि पूरा हम देश को खाई सारी। स्पेशली द पीजेंट्स मानू बहुत असुविधा होता ता उपरे जो ब्रिटिश मानकर पॉलिसी रोला एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। फेमाइन्स ओके एबे मो वॉइस क्लियर अच्छी समस्त को किसी इशू देखिए मिलूँ। Is my voice clear? Just Yes, sir, audible. okay. So since 1837 through 1901 ये टाइम पीरियड मेनली बिकज द सर्वे गोटे होता विलियन कहबी मु विलियन डिघी एक्चुअली गोटे सर्वे करथिले आउ तांके देखिथिले कि 1837 रु 1901 पर्यंत बहुत गुड़ाए सीरीज ऑफ फेमाइन्स सीरीज ऑफ प्लेग डिजास्टर्स ड्रोड इरा सब देखा मिले आउ ही ट्विन एनिमी कह जाउथला जे कि पीजेंट्स क्लास को एज वेल एज समस्त को सोसाइटी रे प्राय सेतबेले तो 80% रु भी अधिक सब रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटी रे सब रिलेट माने लागि थिले। सो से को बहुत असुविधा होता पीजेंट क्लास को आउ मेजर जदि फेमाइन्स विषय देखिए तो ये पीरियड रे 20 फेमाइन्स एमती आसी जोटा कि मेजर कैटेगरी जीव। फेमाइन्स तो बहुत गुड़ाई थिला बट 20 फेमाइन्स आर मेजोरिटी कैटेगरी जीव माने इंटेंस सीवियर फेमाइन्स जाक से आसला। सो यहाँ सब टे बैकग्राउंड देखिए आप लिखिपारे तार इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट एक्चुअली जो सर्वेटा मु कहूली से एक्चुअली विलियम डिघी तांके एक्चुअली गोटे सर्वे करथिले आउ तांके से सर्वे रे सब जिनस कही आउ तांके कहले कि 28,825,000 28,825,000 पीपल्स मरी जाइथिले ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैंने भाई पारंतु केते माने लोक मरी ड्यू टू दिस फेमाइन्स। और तांकर फैमिलीज मान को केते सफरिंग जाक देखा मिले आउ जेते भी फेमाइन्स जाक होउथला ब्रिटिशर्स माने कौन करथुले दे अपॉइंटेड कमिशन्स। ब्रिटिशर्स माने कमिशन्स जेतले इंटेंस सीवियर फेमाइन आउथला से किसी खास मेजर नौ नथिले बट कमिशन गोटे रखी दउथले सांत्वना देवा पई कि कोन पई होची कोन असुविधा अछि ए टाइप सब। ओ गोटे छोटिया डायग्राम भी आपण दे परिवे डायग्राम सब बड़े बॉक्स रे देवा पई चेष्टा करिवे सो गोटे डिसेंट लुक आसे। ये तो मोर हैंड राइटिंग आउ एथि मोर भल हो नै बट आई सजेस्ट मैनेज।
सो जदि देखिए कि कौ एरिया रे प्राय सबू फेमस जगह थिला ये एरिया रे कोई पारि पंजाब वाला रीजन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला रीजन, इन प्राय पूरा देश ही एक्चुअली थिला, बट इंटेंस जिनस ओडिशा, बेंगाल सब तो बुले पारे जे मेजर एरिया जाक लिखा पड़ो। पंजाब रे बहुत देखा मिलता, बेंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, तापर तमिलनाडु, ना एप्रोक्सीमेटली लाइट सेट देकी आप पूरा एरिया को भी लाइट सेट करें। यू कैन राइट द अफेक्टेड रीजन फ्रॉम फेमाइंस रू जो जगह एक्चुअली अफेक्ट होता। तो जस्ट फ्यू एग्जांपल्स आम देखा फेमाइन जगह केबे केबे कौन कौन होता। सो फर्स्ट फेमाइन एक्चुअली 1837 रे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे देखा पे मिले फर्स्ट 1837 रे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। पुणी 1860 रे भी सेम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे प्राय देखा पे मिले। आठी ब्रिटिशर्स माने गोटे कमिशन गोटे तैयारी करेंगे। ब्रिटिशर्स माने गोटे कमिशन करेंगे आउर हेड थे बेड स्मिथ अंडर गोटे कमिशन तैयारी हम इन 1860s इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो जो फेमस होता इंटेंसिवली। देन आल्सो फेमाइन्स एक्चुअली गोटे बहुत बड़ टॉपिक, बट आमर जहाँ भी टॉपिक आम पढ़ा ताकू आम जस्ट ये जिनस केवे भटकी नहीं। 150 ରୁ 250 वर्ड्स रही एक्चुअली आम पाखे मटेरियल दरकार सबू टॉपिक उपरे। एटीन 1866 ରୁ 67 ओडिशा भयंकर से गोटे होता फेमाइनटा ओडिशा, कलकत्ता एंड इवन चेन्नई ये बहुत बड़ गोटे फेमाइन आसला। गोटे कमिशन बनाई जाता अंडर जॉर्ज कैंपबेल। ये सबू फेमाइन्स मैंने एक्चुअली बहुत गुड़ाए सब सजेशन जाक देते। आम डायरेक्टली समस्त कॉमन सजेशन जाक देखा। सो डोंट वेरी फॉर दैट। जॉर्ज कैंपबेल गोटे कमिशन अंडर गोटे कमिशन एक्चुअली तैयारी करा जिवो कबे 1866 ऑनवर्ड्स। तापर 1873 बिहार वाला रीजन आउ नॉर्थ रो किसी रीजन जमी नॉर्थ यूपी, बिहार, एरिया रे एक्चुअली देखा पे मिली 1873 रे। और ये भी एक्चुअली जो कमिशन हम जॉर्ज कैंपबेल ही एक्चुअली लीड करेंगे। जॉर्ज कैंपबेल और ये एक्चुअली बहुत लोग मरी थे, सबुआड़े मरी थे।
जे नॉर्थ रे बिहार वाला स्पेशली रीजन रे बहुत ही माने दुर्भिक्ष जो हिसाब रे हितला बहुत एफेक्ट करितला तापर ताठू भी गोटे बड़टा हेबो 1800 जस्ट 1876 रो 78 रे लागी लागी बहुत एक्चुअली से तळे फेमाइज जाको देखिया पे मिलियो और इटा बहुत बड़ा इटी एक्चुअली इसमें ऑडियो समस्त को क्लियरली सुबा दोछि तो ऑडियो Yes. Yes. 1876 78 रे इटा 1873 रू भी अधिक इंटेंस हेबो बहुत सीवियर वेरी सीवियर और इट बहुत एरिया एक्चुअली in the Hyderabad Mysore Bombay Deccan Madras मैंने टोटल इंडिया मैंने कहले चली पार पंजाब अवध नॉर्थ साउथ सबुआड़े बहुत इंटेंस वेरी सीवियर 1876 ରୁ 1878 वाला जोड़ा है ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଇଭେନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କମିଶନଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଥିଲେ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚି एंड रिचार्ड ଷ୍ଟ୍ରେଚି ଗୋଟେ ବହୁତ गुड़ाए सजेशंस जाक देइथिले कि जो एते जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र फेमाइज जाक आसबार कारण कौन डिटेल तांके एक्चुअली से जिनस जाक रिकमेंडेशन जाक देइथिले इवन फेमाइन कोड भी हम देखिया फेमाइन कोड से फेमाइन कोड भी एक्चुअली रिचार्ड ଷ୍ଟ୍ରେଚି देइथिले सो डिटेली डायरेक्टली कॉमन सजेशन जाक जहाँ जहाँ थिला ता हमें देखि पके तापरे लास्ट आमे जहाँ आमे डील करिया 1899 रू 1900 रे भी गोटे एक्चुअली फेमाइन आसो जोटा कि एक्चुअली पंजाब राजस्थान और बॉम्बे वाला रीजन रे एक्चुअली देखिया पे मिलियो नो एथि जो एक्चुअली कमिशन तयारी हो तांकर हेड थिले मैकडोवेल एटा भी गोटे फेमस कमिशन मैकडोवेल ये टाइम लॉर्ड कर्जन एक्चुअली थिले और मैकडोवेल तो इन इवोल्यूशन आल्सो ये सब लिखि पारे प्राय सब क्वेश्चन आसुने जस्ट फॉर एग्जांपल रे आपण बॉडी रे लिखिया पई इटा यूज कर पारे मेनली हमें देखिबा कॉजेस कि कौन कौन कॉजेस एक्चुअली थिला प्रति 2 ରୁ 3 वर्ष को थरे किछि ना किछि फेमाइज देखिया पे मिलथला केतेबेले नॉर्थ रे केतेबेले साउथ केतेबेले ईस्ट केतेबेले वेस्ट सो सब बेले जो फेमाइन और प्लेग गुटे कॉमन प्रॉब्लम ही देथिला तो सब रेस्पेक्टिव कमिशन जेते भी कमिशन जाको दिया हला से माने तार कॉजेस जाको भी कहिथिले या ई जो कॉजेस हम पढु छु डायरेक्टली जोडा एक्चुअली कमिशंस माने जो रीजन टा एक्चुअली स्टेट करिथिले से रीजन भी को हमें डायरेक्टली देखिया पे चेष्टा करिया तो फर्स्ट रीजन लिख पारिए जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थिला हाई लैंड रेवेन्यू जाक बहुत निया जाउतला से मानकर जदि से माने बिल्कुल ब्रिटिशर्स माने दे बदर किछि हो नथिले कि प्रोडक्शन केमिति हेछि भल हेछि खराब हेछि
कि कौन हो गला से मानकर रेवेन्यू कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम थिला से लैंड रेवेन्यू से लैंड रेवेन्यू आसीबा दरकार तांकर और सेटा पुनी एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू सो दिस हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जहाँ थिला सेटा पीजेंट्स मानकर अवस्था बहुत ही खराब कर देथिला सेकेंड लुक बिकज कौन पे एक्चुअली जो अधिक असुविधा पड़े बिकज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रू कौन है मुझे आपको कही कि जिते भी लोक इंडस्ट्री रे काम करुले से माने जाइए आ घरे पड़े आ घरे जाइए पुणी एग्रीकल्चर सेक्टर रे काम करिया स्टार्ट कले सो ओवर बर्डनिंग और जो एग्रीकल्चर उपरे एक्सेसिव लोक पड़े आसले डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेक ऑफ इंडस्ट्री दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट देखिए पे मिलला और सी एक्सेसिव प्रेशर बाज होता एग्रीकल्चरल लैंड आउ एग्रीकल्चर गोटे सबू जिनस गोटे लिमिटेशन माने गोटे कैरिंग कैपेसिटी था इवन अर्थ रो भी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी से कैपेसिटी रू जदि किसी अधिक हो जाउची ताहले डेफिनेटली से जिनस तार इफेक्ट एक्चुअली नेगेटिव इफेक्ट आपन को देखा मिले थर्ड रीजन इज पुअर मॉनसून एबे भी बहुत गुड़ा जगार मॉनसून उपरे एक्चुअली डिपेंडेंट और से टाइम रे तो सब मॉनसून उपरे ही प्राय डिपेंडेंट थिले मॉनसून जेहेतु ठीक से हला हो नथिला वर्षा जदि ठीक से हेबने तो डेफिनेटली सी वर्षटा एक्चुअली तांकर भल से प्रोडक्शन हेबने आ भूकरे सब मरिवे तो ड्यू टू पुअर मॉनसून आ केनाल फेनाल एते किछि बना हो नथिला सेते बेले जहाँ टिके टिके केनाल था सो नो केनाल किसी नथिला इरिगेशन वर्क एते किछि हो नथिला आ मॉनसून भी भल से हला नहीं सीजनल एक्चुअली सीजनल इन कैरेक्टर सो मॉनसून भी ठीक से हला नहीं तेणु दैट इज आल्सो ए कॉज फॉर दिस फेमाइन्स और मेजर रीजन होचंती ब्रिटिश पॉलिसी सेमानकु दायी केमती देवानी सेमानकु प्राइमरी दायी देवाक पड़ो कि ब्रिटिशर्स मान जो पॉलिसी थिला दैट वाज वेरी वेरी डेट्रिमेंटल टू एक्चुअली फार्मर्स एंड पीजेंट्स सो ब्रिटिशर्स मान जो पॉलिसी थिला एक्सेसिव एक्सपोर्ट कमर्शियलाइजेशन किंबा एक्सपोर्ट कर दउथले से माने सब जिनस को एक्सपोर्ट कर दउथले ब्रिटेन को लंडन रे सो एक्सेसिव एक्सपोर्टिंग ऑफ ग्रेन्स इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्केरसिटी टाइम रे जिते एक्चुअली नथिला इवन सेते बेले भी जबरदस्ती जहाँ भी जेतिकी भी रोला ताकू भी पठे दउथले तो लोक माने तो डेफिनेटली मरिबे इवन लोक माने कोर्स ग्रेन खाउथले कोर्स ग्रेन बट ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन इन अनदर टॉपिक यू कैन राइट कमर्शियलाइजेशन सो कमर्शियलाइजेशन रे कोर्स ग्रेन को एक्चुअली जोड़ा एक्चुअली पुअर मेन्स डाइट आम जहाँ देशवासी खाऊलु कोर्स डाइट मिलेट्स बेसी तो सी जिन को एक्चुअली प्रमोट न करिकी कमर्शियल केस क्रॉप जाक को ही बेसी प्रमोट कले तो खावाई जो कम होता से पुणी एक्सपोर्ट कर दौले सब जिन को तो डेफिनेटली सब भूकरे मरी जाते और पुणी जो वर्षा जदि हो रही तो असुविधा देखा मिलूला इवन ब्रिटिश पॉलिसी आप इवन रेलवे जिनस को लिखिपारे कि जो रेलवे आसला ये रेलवे रू कौन है जिते भी छोट छोट विलेजेस माने थिले सब जाक जो कनेक्टिविटी हो गला सी कनेक्टिविटी माध्यम सब जिनस पठे दौले विदेश रे सो रेलवे लगी जो एक्सपोर्ट तांगे करि पारुथिले सीधा दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रेलवे कनेक्टिविटी रेलवे सब आड़े होगा माल गाड़ी रे सब जिनस को से माने नहीं पलाउथिले सीधा पोर्ट को और पोर्ट को डायरेक्ट पलाउथला तांकर देश ब्रिटेन रे सो दिस रेलवे पॉलिसी जो हिसाब से थिला तो एक्सपोर्ट बहुत ही जाउथला तो दीज आर द एक्चुअली मेनली प्राइमरी रीजन्स जोड़ा कि इवन
जो कमिशन जाक रिचर्ड स्ट्रेची कमिशन, मैकडोवेल कमिशन कि जॉर्ज बेड स्मिथ कमिशन ये सब रीजन जाक देइथिले. So now come to solutions part. Way forward. क्वेश्चन जहाँ पचारे जाइथिबो ता डिमांड को फास्ट नहीं लिखिदेवे. लिखिला परे जदि इनकेस आपनकर स्पेस फिलअप हो पारने सो जदि कजेस विषय क्वेश्चन पचार कजेस लिखिबे. सॉल्यूशन पचारने हेले भी गोटे फ्लो चार्ट बनेगी सॉल्यूशन रो आउ जस्ट हेडिंग जाक लिखिकी तार फ्लो चार्ट बनेगी लिखिदेवे. जदि सॉल्यूशन विषय क्वेश्चन आछि सॉल्यूशंस को भलसे लिखिदेवे. कजेस को गोटे साइड रे फ्लो चार्ट बनेगी लिखिदेवे. सो दैट एक्स्ट्रा इंप्रेशन एक्चुअली जनरेट हुए कि एक्स्ट्रा किसी जिनस लिखाई विथ द डिमांड्स आल्सो. डिमांड्स को तो फुलफिल कराई क्वेश्चन रो एज वेल एज किसी एक्स्ट्रा भी लिखाई सॉल्यूशन पार्ट को भी एड्रेस कराई. सो ये एप्रोच रखिकी चेष्टा करेंगे आंसर देवाई. सो भल मार्क रखिपारे. सो ना कम टू सॉल्यूशंस पार्ट. सॉल्यूशन एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन आपको लिखुचु जो रेस्पेक्टिव कमिशन्स माने एक्चुअली होते जमी रिचर्ड स्ट्रेची कमिशन होते के 1876-78 रे रिचर्ड स्ट्रेची कमिशन आसला. मैकडोवेल कमिशन आसला. ये सब कमिशन जाक जो सॉल्यूशन देते से सॉल्यूशन जाक ही आम कॉमन किसी सॉल्यूशन जाक देखिया. तो से मैंने गोटे बहुत फुल फ्लेजेड प्लान देते रेस्पेक्टिव कमिशन जाक जो होता तांके फुल फ्लेजेड प्लान जाक दौले कि आम केमी मिटिगेट कर केमी एक्ट कर से इफेक्ट्स को केमी कम कर फेमाइन इफेक्ट को. बाकी किसी भी जिनस को इम्प्लीमेंट करागला ना से जिनस को कनक्लूजन रे लिखा. किंतु तांके कौन देले फास्ट सॉल्यूशन रे तांके कहले कि नो डाइवर्सिफिकेशन of stored grains. नो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स. जहाँ स्टोर करके जोड़ा रखा होची जेते मिनिमम जेते रहिबा दरकार तार पुणी एक्सपोर्ट माने करिवार नाही. से डाइवर्सिफिकेशन न करके सेटा एक्चुअली बफर स्टॉक गोटे मेंटेन करिया पई कथा हेतिला. तो जो इनकेस जदि फेल्यूर हो जाउची हेले भी लोक माने मरिबे तो नाही एटलिस्ट मानको खाइबा पई तो किछि गोटे रहइबो बोली. नो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ stored grains. So first solution was that. Second solution, prohibition of export तो लिमिटेशन एबे जिंती मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस ये सब जिन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दौर सेमती प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इन ओवरसीज. ओवरसी माने बाहर आमर जो जिनस जाक जो एक्सपोर्ट कर तार लिमिटेड अमाउंट ही गोटे माने पठा हेबो. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन जो फेमाइन हेबो सेते बेले बिल्कुल भी बाहर पठेबा कथा नहीं बोली से माने एक्चुअली रेकमेंड देइथिले. एटा इम्प्लीमेंट जेतु करा है बट से माने सॉल्यूशन जाक देइथिले एमडी करिया दरकार. प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इन द ओवरसीज. इवन तांके कहले कि 10 million per year बजट रे एलोकेशन मिलू फॉर दिस फेमाइन. 10 million per year budget allocation for famine prevention. 10 million per year budget allocation for famine prevention. फेमाइन प्रिवेंट करिया पई बजट रे 10 million प्रति वर्ष को एलोकेट करिया कथा. आउ किछटा स्टेप नेबा कथा जिंती कैनल्स बनै देलो तमे इरिगेशन वर्क कर देलो एम्बैंकमेंट्स तैयारी कर देलो कि फार्मर्स मानकर किछि गोटे भलो करिया पई जहा हेले 10 million पर ईयर एक्चुअली बजट एलोकेशन करिया कथा. इवन गोटे फेमाइन कोड भी तांके डिवाइस करथिले. फेमाइन कोड कि फेमाइन आसिला बेले को हिसाब रे बिहेवियर रखिया कथा बोथ टू द पीजेंट्स टू द फार्मर्स एज वेल एज टू द ब्रिटिशर्स एज वेल एज टू द गवर्नमेंट. समस्तंकर
केमिति एक्चुअली व्यवहार बिहेवियर केमिति कौन से माने लैंड रेवेन्यू रखा कथा कमेवा कथा डिटेल गुटे फेमाइन कोड एक्चुअली जेमती एबे इथिक्स ऑफ कोड अछि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जिवो इलेक्शन रे सेमती गुटे फेमाइन कोड एक्चुअली डिवाइस करा जाइतला इन 1883 रिचर्ड स्ट्रेची एक्चुअली आपको करथिले और इठी डिटेल सब जिनस लिखा होता कि एमती आम प्रिवेंट करें फेमाइन्स को नेक्स्ट मेजर थिला से माने बहुत गुड़ाए सब देते एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन माने लोन देवाटा जमती एवं किसान क्रेडिट कार्ड जाक होगला से ठीक से परी एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन लोन केमिति से मिलू कि तांके एक्चुअली तांकर चाषबास करें सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द फेमाइन जिते होता से एक्चुअली जो लैंड रेवेन्यू नौ तुम से एक्चुअली कम कर दियो आउ से कम ही ना से नियो ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन बिकज ऑलरेडी से माने प्रॉब्लम रे अछंती से मानकु माने भलो भलो जिंस जाक रेकमेंड कराइला प्रमोशन ऑफ कैनल वर्क रो बहुत प्रमोशन हो तो जदि वर्षा भी हो नहीं जदि पूर मानसून टाइम रे भी से मानकर जिनसटा सस्टेन हो जाओ बोली इवन एग्रीकल्चरल बैंक भी तैयारी करिया कथा एग्रीकल्चरल बैंक जैसे नाबार्ड अच्छे ठीक हिसाब से एग्रीकल्चरल बैंक जाक तैयारी करिया कथा जे कि एक्चुअली फार्मर्स मानकर भल पई भाबिबो एग्रीकल्चर केमती डेवलप हो ता विषय चिंता करियो से गोटे एग्रीकल्चरल बैंक जाक भी एस्टाब्लिश करिया पई सजेशन जाक देइतला so these are actually the solution part जे करे कथा इवन एबे भी वे फॉरवर्ड रे आपण ए सब जिंस जाक किछिटा लिखि परिबे now conclusion रे इडा ही लिखबे कि बस सो अनफॉर्चुनेट कि ब्रिटिशर्स माने कमिशन तो तैयारी करूथिले कमिशन्स माने भी तांकर भल रेकमेंडेशन देइछंती किंतु केबे भी सी जिंस को इंप्लीमेंट करा जाउ नथला जेतेबेले इंप्लीमेंट करिया पे होतला केबे भी ताको इंप्लीमेंट करा जाउ नथला खाली से माने टेम्परेरी मेजर्स जाक नौथले टेम्परेरी so unfortunate that temporary measures were taken just सेतेबेले जस्ट लोक माने को शांतना पई जस्ट टिके टेम्परेरी काम होतला बाकी परमानेंट सॉल्यूशन जो जिंस ऊपर काम करिया कथा सी सॉल्यूशन ऊपर केबे भी से माने कामटा करले नै so this was the case actually